Hello guys, welcome to our YouTube channel which is Clear Tech with Rishabh, and today we will start our unit third, which is Introduction to Personal Genomics. Third unit, which is application of the general genomics. So moving towards the first topic, which is linear programming. So linear programming is the mathematical optimization technique used to determine the best possible outcome under given constraints. So mainly linear programming एक mathematical optimization technique है जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं best possible outcome को डिटरमाइन करने के लिए अंडर गिवन कॉन्स्टेंट्स. फिर it involves maximizing or minimizing a linear objective functions subject to a set of linear constraints. A standard LP problem consists of the following components mainly. So first is objective function, a linear expression such as max z is equal to ax plus by. Second, constraints, a system of linear inequalities or equations. And third, non-negativity constraints. तो यहाँ पे मेनली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक स्टैंडर्ड एलपी प्रॉब्लम किन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उनके मेनली तीन जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं. तो फर्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेकंड होता है कॉन्स्टेंट्स एंड थर्ड होता है नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट्स. अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि एलपी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है. तो एलपी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड्स लाइक बीगेम मेथड और टू फेज मेथड, while problems involving only two variables can be solved using graphical method. So mainly यहाँ पे दो तरीके से सॉल्व हो सकता है. पहला है आपका सिंप्लेक्स मेथड, सेकंड इज बीगेम मेथड या फिर टू फेज मेथड. जबकि जो प्रॉब्लम्स है ना जिनमें दो वेरिएबल होते हैं उनको हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. अब इसका यूज़ क्या है. तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज वाइडली यूज्ड इन ऑपरेशन, रिसर्च, रिसोर्स एलोकेशन, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन. तो इनका मेनली यूज़ होता है ऑपरेशन रिसर्च में, रिसोर्स एलोकेशन में, फिर सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स एंड cost minimization में. In data science and machine learning, the linear problem or linear programming is used in feature selection, optimization of parameters, and constraint regression problems. Its structured approach and guaranteed convergence make LP an essential tool for decision making systems. तो मेनली मशीन लर्निंग के अंदर ये फीचर सिलेक्शन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पैरामीटर्स एंड कंस्ट्रेंट रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होता है. ये मेनली इसका स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और गारंटीड कन्वर्जेंस इसको एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल टूल बनाता है डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स. Topic which is NP completeness. So NP completeness is a fundamental concept in computational complexity theory that categorizes decision problem according to their difficulty. So mainly NP completeness एक fundamental concept है computational complexity theory के अंदर जो कि categorize करता है decision problems को according to their difficulties. Okay, so the class P includes problem solvable in polynomial time, while NP includes problem whose solution can be verified in polynomial time. So एक problem NP complete कैसे हो सकता है. So a problem is NP complete if it belongs to NP and every NP problem can be polynomial time reduced to it. So talking about NP complete problem, these are the hardest problem in NP, and if any one of them is solved in polynomial time, all NP problem become solvable in polynomial time, implying P is equal to NP, one of the greatest open question in computer science. So common NP complete problem include circuit set, traveling salesman's problem, 3 set, knapsack and vertex cover. Since no efficient algorithms exist, approximation algorithms, heuristics and मेटा ह्यूरिस्टिक्स टेक्निक्स आर यूज्ड. सो मेनली क्या है ना कि यहाँ पे जो एनपी कंप्लीटनेस को सॉल्व करने के लिए कोई एग्जैक्ट एल्गोरिदम नहीं है. सो मेनली यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक्स और मेटा ह्यूरिस्टिक्स टेक्निक्स का यूज किया जाता है इनको सॉल्व करने के लिए. अंडरस्टैंडिंग एनपी कंप्लीटनेस गाइड्स एल्गोरिदम डिजाइनर बाय इंडिकेटिंग व्हेन टू अवॉइड ब्रूट फोर्स एंड प्रीफर अप्रोक्सीमेट और ह्यूरिस्टिक सॉल्यूशंस. मेनली एनपी कंप्लीटनेस समझने के बाद एक डिजाइनर या फिर एक प्रोग्रामर को पता चलता है कि कब उसे ब्रूट फोर्स को अवॉइड करना चाहिए यूज करना और उसको अप्रोक्सीमेट या फिर ह्यूरिस्टिक सॉल्यूशंस को अपनाना चाहिए. इंट्रोडक्शन टू पर्सनल जीनोमिक्स. सो मेनली पर्सनल जीनोमिक्स होते क्या है. तो पर्सनल जीनोमिक्स इज द स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस टू प्रोवाइड इंसाइट इनटू हेल्थ, एंसेस्ट्री, ट्रेट्स एंड डिजीजेस. मेनली पर्सनल जीनोमिक्स ये होता है, वो एक स्टडी होता है और इंटरप्रिटेशन होता है किसी भी एक इंडिविजुअल के कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस का, जो कि हमें प्रोवाइड करता है प्रॉपर इंसाइट ऑफ हेल्थ, एंसेस्ट्री, ट्रेट्स और डिजीजेज रिस्क जो कि किसी भी इंसान के अंदर हो सकता है. With the advancement of sequencing technologies like whole genome sequencing and whole exome sequencing, genetic testing has become affordable and accessible. Mainly ये दो टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा मेनली सीक्वेंसिंग की जाती है एक पूरे के पूरे डीएनए की. तो जेनेटिक टेस्टिंग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हो चुकी है. द की कंपोनेंट ऑफ पर्सनल जीनोमिक्स इंक्लूड डीएनए सीक्वेंसिंग, वेरिएंट डिटेक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक्स मार्कर्स,
हेल्थ एंड एंसेस्ट्री एनालिसिस। तो मेनली ये कंपोनेंट्स हैं जीनोमिक्स के, जिनका हेल्प से हम लोग किसी भी एक डीएनए के बारे में स्टडी कर पाते हैं। तो जीनोमिक्स एनेबल्स पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर, डिजीज रिस्क प्रेडिक्शन, pharmacogenomics, and preventive medicine. Companies like 23andMe and Ancestry DNA provide consumer generic testing, while hospitals use clinical genomics for diagnosis. तो मेनली यहाँ पे इसका मॉडर्न लाइफ का यूज़ जो जो होता है, और कुछ कुछ कंपनीज जैसे 23andMe या फिर 23andMe एंड एंसेस्ट्री डीएनए के बारे में बताया जा रहा है, जो कि जेनेटिक टेस्टिंग का यूज़ करते हैं, और कुछ कुछ हॉस्पिटल्स या क्लिनिक जो हैं वो क्लिनिकल जेनोमिक्स का यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए। अब हम लोग जानते हैं कि इसके इथिकल इश्यूज़ क्या हैं। तो इथिकल इश्यूज़ includes privacy, genetic discrimination, and securing genomic data. Overall, personal genomics empowers individual by transforming biological information into actionable medical and lifestyle insight. तो मेनली क्या है कि ओवरऑल अगर हम लोग बात करें पर्सनल जेनोमिक्स को, तो ये एम्पावर करता है किसी भी इंडिविजुअल के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, और उसको हम लोग मेडिकली कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसका लाइफस्टाइल कैसे सुधार। और नेक्स्ट टॉपिक विच इज मैसिव रॉ डेटा इन जीनोमिक्स। सो genomics produces extremely large volume of raw data due to advanced sequencing technologies such as next generation sequencing. A single human genome can generate 100 to 200 GB of raw sequencing data. अब मेनली यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जेनोमिक्स बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ रॉ डेटा को जनरेट करते हैं, और मेनली क्या होता है ना कि एक सिंगल ह्यूमन जेनोम जो है ना वो 100 टू 200 GB ऑफ रॉ डेटा जनरेट कर सकता है। अब इसके मेजर फाइल फॉर्मेट्स क्या होते हैं? मेजर फाइल फॉर्मेट्स तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है फास्ट क्यू विच इज़ रॉ सीक्वेंस रीड्स, सेकंड होता है बैम विच इज़ अलाइंड रीड्स, एंड थर्ड होता है वीसीएफ दैट मीन्स वेरिएंस। This massive data requires huge storage, high performance computing, and specialized processing pipelines. Challenges include data noise, quality filtering, read alignment, variant calling, compression, and ensuring security storage of highly sensitive genomic data. तो मेनली ये जो मैसिव डेटा होता है ना, इनको ह्यूज स्टोरेज की ज़रूरत होती है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की ज़रूरत होती है, पर्सनलाइज्ड इनको पाइपलाइन चाहिए होता है, और इनमें बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं इनको स्टोर करने में भी। चैलेंजेस क्या होते हैं? डेटा नॉइज होता है, क्वालिटी फिल्टरिंग होती है, फिर रीड अलाइनमेंट होता है, वेरिएंट कॉलिंग होती है, कंप्रेशन होती है, और इनको सिक्योर रखना भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव जेनोमिक डेटा होते हैं। तो टूल्स सच एज Hadoop, Spark एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हेल्प प्रोसेस पेटाबाइट स्केल जेनोमिक डेटा। तो मेनली टूल्स जो यूज़ होते हैं वो होते हैं Hadoop, Spark और क्लाउड प्लेटफॉर्म, जिन जो कि पेटाबाइट्स स्केल ऑफ जेनोमिक डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं हमारी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि लार्ज डेटा सेट्स इनेबल्स पॉपुलेशन स्केल एनालिसिस, म्यूटेशन डिस्कवरी, अंडरस्टैंडिंग डिजीज, genetics, and developing personalized medicines. Genomics is one of the best contributors to big data, and its size continues to increase as sequencing becomes more affordable. Mainly, genomics one of the biggest contributor है big data में, और इसका साइज तब तक बढ़ता जाएगा जब तक सीक्वेंसिंग ज़्यादा अफोर्डेबल, जैसे जैसे ज़्यादा अफोर्डेबल बनेगी वैसे वैसे ये इसका साइज भी बढ़ता जाएगा, और ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर भी बन जाएगा बिग डेटा के अंदर। genomes. Data science plays a central role in analyzing personal genomes by converting massive DNA dataset into medically meaningful insights. Mainly data science एक बहुत ही crucial role play करता है personal genomes को convert करने के लिए, जो कि DNA datasets को convert करता है medically meaningful insights में। अब इसका वर्कफ्लो समझते हैं। इसके वर्कफ्लो में स्टेप 1 जो होता है वो प्री प्रोसेसिंग होता है रॉ सीक्वेंसिंग रीड्स का, फिर सेकंड जो होता है वो अलाइनमेंट टू रेफरेंस जेनोम्स होता है, थर्ड इज वेरिएंट कॉलिंग जैसे ASNPs, CNVs या फिर इंडेल्स, फिर फोर्थ होता है वेरिएंट एनोटेशन एंड इंटरप्रिटेशन, फिर फिफ्थ जो हमारा लास्ट स्टेज है वो है प्रेडिक्टिव मॉडलिंग एंड विजुअलाइजेशन। मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल हेल्प आइडेंटिफाइंग डिजीज रिस्क्स, ancestry patterns, inherited disorders, and drug response predictions. Tools like Python, R, Bioconductor, TensorFlow, and GATK हेल्प ऑटोमेट जेनोमिक वर्कफ्लो। अब मेनली यहाँ पे मशीन लर्निंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि आइडेंटिफाई करता है डिसीज रिस्क या फिर एंसेस्ट्री पैटर्न्स या फिर इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स को, और यहाँ पे टूल्स जैसे पाइथन, आर, बायोकंडक्टर, टेंसरफ्लो एंड GATK हेल्प करते हैं ऑटोमेट जेनोमिक वर्कफ्लो। प्रेसिजन मेडिसिन, डेटा साइंस इनेबल्स पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग, अर्ली डिजीज डिटेक्शन एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। अब मेनली क्या है ना कि इससे मेडिसिन होगी या फिर आपके पास प्लानिंग होगा, तो आप अर्ली डिजीज डिटेक्शन कर सकते हो और प्रिवेंटेटिव हेल्थ केयर भी कर सकते हो। Genomic biomarkers discovered through ML models help clinicians make informed decisions. Thus, data science bridges genomics and clinical applications, making personal genomics actionable and life changing. तो मेनली यहाँ पे क्लिनिशियंस जो होते हैं, जो कि क्लिनिक्स में होते हैं, उनके लिए जो ML मॉडल होता है वो हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक मैजिक के तरीके के होता है, जिसको जो कि मतलब इन्फॉर्म डिसीजंस को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और डेटा साइंस जो होता है हमारा वो मेनली जीनोमिक्स और क्लिनिकल
एप्लीकेशंस के बीच का ब्रिज हम लोग बोल सकते हैं इसको, जो कि पर्सनल जेनोमिक्स को एक्शनेबल और लाइफ चेंजिंग बनाता है, क्योंकि हम इसके थ्रू बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेज को पहले ही डिटेक्ट करके प्रिवेंट कर पाते हैं जो कि लाइफ टेकिंग हो सकता है या फिर जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है हमारे बॉडी को। नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पर्सनल जेनोम्स। सो human genomes are highly interconnected due to shared ancestry, evolutionary history and biological similarities. Mainly human genomes बहुत ही ज़्यादा highly interconnected होते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि उनकी shared ancestry हो सकती है या फिर उनका अलग एक history हो सकता है या biological similarities भी हो सकती है उनके अंदर. All humans shares approximately 99.9% of their DNA, and even remaining 0.1% reveals relationships across families, populations and ethnic groups. Mainly क्या है कि सारे इंसानों का, सारे ह्यूमंस का मेनली 99.9% डीएनए मैच होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक जैसा होता है, और रिमेनिंग 0.1% जो डीएनए होता है वो रिवील करता है हमारे फैमिली के बीच का रिलेशनशिप या फिर पॉपुलेशन या फिर हम जिस ग्रुप से आते हैं, जिस एथनिक ग्रुप से आते हैं. Interconnectedness enables identification of shared genetics markers, second tracking hereditary diseases, understanding population genetics, and analyzing mutation patterns. However, it also introduces ethical concerns where one person shares genomic data. It indirectly reveals information about relatives who may not have consented. This raises issues of privacy, genetic discrimination, insecure bias, and ethical handling of genomics. अब मेनली क्या है ना कि यहाँ पे एथिकल कंसर्न्स भी आते हैं कि अगर मान लो कि किसी भी एक इंसान के जेनोमिक्स को, अगर हम जेनोमिक डेटा को शेयर करते हैं, तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को खोल देता है, जैसे उसके रिलेटिव के बारे में बिना उनके कंसेंट लिए. ये एक बहुत ही बड़ा इशू है, प्राइवेसी या फिर जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है जिससे. दूसरा है कि आपका इंश्योरेंस बायसनेस हो सकता है. फिर तीसरा होता है कि एथिकल हैंडलिंग अगर उसकी अच्छे से नहीं हुई तो उसमें भी बहुत बड़ी ब्रीच आ सकती है हमारे प्राइवेसी में भी. So, scientifically, interconnected genomes help researchers build global genomic model, improve disease prediction, drug response analysis, and personalized medicine. Understanding interconnectedness improves genomic accuracy and quality of health recommendation. Mainly, अगर हम लोग अच्छे से समझ जाएं, जैसे scientifically ये researchers को बहुत ज़्यादा help करता है ग्लोबल जेनोमिक मॉडल्स जो होते हैं ना वो बनाने में, जो कि इम्प्रूव करता है डिजीज प्रेडिक्शन को, ड्रग रिस्पॉन्स एनालिसिस को और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को. Coming to our next topic, which is case study in personal genomics. Several case studies highlights the practical impact of personal genomics. One major example is in diagnosing rare genetics disorders where traditional testing methods fail. Mainly बहुत सारे केस स्टडीज जो हैं वो हाईलाइट करते हैं कि प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है पर्सनल जेनोमिक्स का. एक मेजर एग्जांपल ये है कि हम लोग डायग्नाइज कर सकते हैं रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर को जहाँ पे कि ट्रेडिशनल टेस्टिंग मेथड्स फेल हो जाती है. By sequencing the patient's genome, clinicians can identify disease-causing mutations and provide targeted treatments. Another case involves pharmacogenomics, where genetic testing helps determine how an individual metabolizes drugs such as warfarin, antidepressants और कैंसर medications. So mainly क्या है कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि हम लोग ट्रेडिशनल जो रेयर जेनेटिक्स डिसऑर्डर होते हैं उसको कैसे सही कर सकते हैं, या फिर जो कैंसर मेडिकेशन होता है उसको हम लोग अच्छे से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म ड्रग्स कैसे बना सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स कैसे बना सकते हैं. सो डायरेक्ट टू कंज्यूमर कंपनीज लाइक 23 and Me प्रोवाइड एंसेस्ट्री एनालिसिस, ट्रेड प्रेडिक्शन, career screening for inherited disorders, and wellness insights based on genomic variations. In oncology, tumor sequencing identifies mutations like BRCA1 or BRCA2, इनेबलिंग पर्सनलाइज कैंसर ट्रीटमेंट. अब ऑन्कोलॉजी में ट्यूमर सीक्वेंसिंग भी आइडेंटिफाई करता है म्यूटेशंस को, जैसे BRCA1 होता है, BRCA2 होता है, जो हमें पर्सनलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. दीज केस स्टडीज डेमोन्स्ट्रेट हाउ पर्सनल जेनोमिक सपोर्ट प्रेसिजन मेडिकेशन, प्रिवेंट केयर, एंसेस्ट्री मैपिंग एंड पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर एंड डिसीजंस. ये मेनली केस स्टडीज हमें दिखाते हैं कि एक पर्सनल जेनोमिक्स कितना ज़्यादा हेल्प करता है प्रेसिजन मेडिसिन में और प्रिवेंट करने में. जो बड़े से बड़े डिजीज होते हैं उनको कैसे क्योर किया जाता है या फिर उनको समय से पहले कैसे सही किया जा सकता है, डायग्नाइज किया जा सकता है. सो अब ये तो हो गया. दिस वाज ऑल अबाउट आवर चैप्टर विच वाज थर्ड चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन टू पर्सनल जेनोमिक्स. और इसके बाद हम लोग अब देखते हैं जो हमारे 14 या फिर 15 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, RGPV पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए वो देखते हैं. फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग और उसके 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स. तो लीनियर प्रोग्रामिंग हमने पढ़ रखा था. अब उसके एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उसके एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉन्स्टेंट्स और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस. अब कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेकंड क्वेश्चन. जस्ट अ सेकंड. Second question is feasible region and optimal solution. So feasible region and optimal solution of graphical LP.
अब feasible region क्या होता है? The feasible region is the common shaded area where all constants overlap on the graph. It represents all points x, y that satisfy every condition in LP model. And optimal solution क्या होता है? The optimal solution is the vertex or the corner point of the feasible region that gives the maximum or minimum value of the objective function. तो ये होता है फिजिबल रीजन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फिजिबल रीजन मेनली होता है कॉमन शेडेड एरिया जो कि ओवरलैप करता है सारे कॉन्स्टेंट्स के अंदर एक ग्राफ के अंदर, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक कॉर्नर पॉइंट होता है उस फिजिबल रीजन के अंदर। अब बगल में जैसे एक ग्राफ है, ग्राफ में भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो फिजिबल रीजन है वो सारे पॉइंट्स को जो ओवरलैप कर रहा है वो एक्स और वाई के अंदर है, जो कि एलपी मॉडल को भी सेटिस्फाई करता है। और यहाँ पे जो वर्टेक्स है या फिर कॉर्नर पॉइंट है वो उसको हम लोग मान सकते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब थर्ड है हमारा वर्किंग ऑफ सिंप्लेक्स एल्गोरिदम। तो इसमें आता है हमारा जो इसके जो 6 पॉइंट्स हैं वो है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, एंटरिंग वेरिएबल सेलेक्शंस, लीविंग वेरिएबल सेलेक्शंस, पाइवट ऑपरेशंस एंड इटरेशन अंटिल नो इम्प्रूवमेंट एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लास पी एंड एनपी डिफिनेशन एंड डिस्टिंक्शन, जो हमने पहले भी पढ़ रखा था क्या होता है पी क्लास या फिर क्या होता है एनपी क्लास, तो वही उसी के बारे में लिखा हुआ है या फिर उनका की डिस्टिंक्शन एक दूसरे के बीच का है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा मीनिंग ऑफ एनपी कंप्लीटनेस, तो ये भी हमने पहले पढ़ रखा है आगे। तो आप मेनली जो क्वेश्चन है या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप सिंपली मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, आप उसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आगे हो तो मैं से आप मैं एक इंस्टाग्राम की आईडी डाल दूंगा, वहाँ पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा अबाउट पीडीएफ ऑफ यूनिट 3 लिख के डाल दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ डायरेक्टली भेज दूंगा आपके पास। ओके, so coming on the sixth, which is example of NP completeness problem and why polynomial solution is desired. So here we can understand with traveling salesman's problem, salesperson's problem. नाउ सेवंथ इज पर्सनल जेनोमिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो कि हमने पहले भी पढ़ रखा था क्या होता है ये कि इंटायर डीएनए सीक्वेंस को कैसे हम लोग डिराइव करते हैं उससे हेल्थ या फिर एंसेस्ट्री इनसाइट्स को। फिर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कैसे होती है, कंपनीज कैसे कैसे क्या क्या यूज़ करती है जेनोमिकल टेस्टिंग को। तो आगे हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेनोटाइपिंग एंड होल जेनोम सीक्वेंसिंग। अब जेनोटाइपिंग क्या होती है? जेनोटाइपिंग स्पेसिफिक नोन वेरिएंट्स के लिए टेस्ट होता है जो कि होता है एसएनपी। ये चीपर होता है, फास्टर होता है और इसको यूज़ किया जाता है एंसेस्ट्री टेस्ट के लिए। वेयर एज WGS क्या होता है? वो रीड करता है 100% ऑफ डीएनए को इंक्लूडिंग रेयर वेरिएंट्स, जो डिटेक्ट करता है एसएनपीज को भी, सीएनवीज को भी, इंडेल्स को भी और स्ट्रक्चरल म्यूटेशंस को भी। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में। अब आगे हम लोग हमारा जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो है डेटा वॉल्यूम एंड फॉर्मेट इन जीनोम सीक्वेंसिंग। फिर 10th क्वेश्चन है कंप्यूटेशनल चैलेंज इन लार्ज जेनोमिक डेटा। सो जो डेटा वॉल्यूम एंड फॉर्मेट्स इन जीनोम सीक्वेंस है उसको हमने पहले भी पढ़ रखा था कि एक जैसे ह्यूमन जेनोम है ना वो 100 to 200 GB ऑफ रॉ डेटा यूज करता है, तो इनको फॉर्मेट्स में हम लोग कैसे बदलते हैं और इनका क्या क्या यूज होता है वो पहले भी आप देख लीजिएगा, तो उसमें भी मैंने बहुत बड़ा सा लंबा चौड़ा सा आंसर लिखा हुआ था, वो भी उसमें से भी आप देख के लिख सकते हैं या फिर इसमें भी आंसर दिया हुआ है उस इस क्वेश्चन का, तो यहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं। अब 10 जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटेशनल चैलेंजेस इन लार्ज जेनोमिक डेटा। सो लार्ज जेनोमिक डेटा में कंप्यूटेशनल चैलेंजेस क्या होती हैं? तो ह्यूज स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स होता है, टेराबाइट्स ऑफ स्टोरेज, स्लो प्रोसेसिंग एंड अलाइनमेंट एंड वेरिएंट कॉलिंग होती है, फिर हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट होता है, डेटा ट्रांसफर लिमिटेशंस होती है, स्ट्रिक्ट प्राइवेसी और सिक्योरिटी ड्यू टू सेंसिटिव नेचर होता है। अब हमारा जो 11th क्वेश्चन है वो है रोल ऑफ डेटा साइंस इन जेनोमिक्स, जो कि हमने पहले भी पढ़ रखा था कि रोल एक डेटा साइंस का रोल क्या होता है जेनोमिक्स के अंदर। तो पहला रोल होता है डेटा प्रोसेसिंग, वेरिएंट आइडेंटिफिकेशन, डिजीज एंड ड्रग प्रेडिक्शन, हिस्ट्री एंड ट्रेट एनालिसिस एंड एक्शनेबल इंसाइट्स। सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक या फिर क्वेश्चन है वो है रोल ऑफ डेटा साइंस इन जेनोमिक्स। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग कैसे होता है, वेरिएंट आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, या फिर डिजीज एंड ड्रग आइडेंटिफिकेशन या फिर प्रेडिक्शन कैसे होता है, एंसेस्ट्री एंड ट्रेट एनालिसिस कैसे होता है, और एक्शनेबल इंसाइट्स जो दिया जाता है जेनोमिक्स के अंदर डेटा साइंस से। अब हम लोग जो हमारा 12th क्वेश्चन है हाउ अलाइनमेंट एल्गोरिथम्स वर्क्स। सो अलाइनमेंट एल्गोरिथम्स की वर्कफ्लो क्या होती है? तो फर्स्ट इंडेक्स द रेफरेंस जेनोम फॉर फास्ट लुकअप, सेकंड कंपेयर ईच रॉ रीड विथ रेफरेंस सेगमेंट्स यूजिंग सीड मैचिंग, थर्ड जो होता है वो एक्सटेंड अलाइनमेंट यूजिंग स्कोरिंग फंक्शंस, फोर्थ इज सेलेक्ट द बेस्ट मैच एंड आउटपुट रिजल्ट इन बैम फॉर्मेट। टिप होता है वो होता है दिस मैप्स बिलियंस ऑफ रीड्स एफिशिएंटली टू द देयर करेक्ट जेनोमिक पोजीशन। सो 13th क्वेश्चन है वो है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पर्सनल जेनोम इन डिजीज वेरिएंट डिस्कवरी, ये भी हमने पहले पढ़ रखा है। फिर हमारा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है एथिकल लीगल एंड सोशल इंप्लीकेशंस, जिसमें पहला होता है प्राइवेसी कंसर्न, सेकंड होता है जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड होता है लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, फोर्थ होता है मिसयूज बाय थर्ड पार्टीज और हैकर, एंड फिफ्थ होता है एथिकल इशूज। और जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो है केस स्टडी ऑफ पर्सनल जेनोमिक्स लीडिंग टू ब्रेक थ्रू केस रेयर चाइल्ड डिसऑर्डर डायग्नोस्टिक थ्रू WGS। सो यहाँ पे एक केस स्टडी है जिसमें रेयर चाइल्डहुड डिसऑर्डर को कैसे डायग्नाइज किया जाता है WGS के द्वारा। तो ये पूरा का पूरा उसका वर्क फ्लो है या फिर पूरा का पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है जो कि मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप उसको देख के समझ सकते हो। सो दिस वाज इट फॉर टुडे, और ये पूरा का पूरा हमारा थर्ड यूनिट था, जो अगर पढ़ के जाओगे तो आई गारंटीड कि आपका ओवरऑल मार्क्स 70 आउट ऑफ 70 रहने वाला है।
और मैं अभी लास्ट में अभी अपना इंस्टाग्राम का हैंडल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके पूरा का पूरा पीडीएफ भी ले सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके इस पूरे के पूरे वो को सेव करके आगे पढ़ भी सकते हैं उसको। थैंक यू, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि यूनिट 4 होगा इसका, हमारे मशीन लर्निंग फॉर डेटा साइंस का। थैंक यू।